Any doubt, any confusion? We have discussed all the points till now. No, Yes. sir. Okay. So just wait, Shweta. Wait 1 minute more. Let other people join, then we start. Okay, let me share my PPT. Just wait. It is visible. Shweta, Aryan. Yes, sir. Visible. So yesterday we were discussing about magnetic disk. So डिस्क को बहुत सारे ट्रैक में डिवाइड करते हैं एंड देन एवरी ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड बाय सेक्टर्स, ठीक है, एंड one read write head is there and this read write head is moved to track and from track to particular sector to read the data, ठीक है. So anyone having any doubt in these terms like seek time, rotational delay, ठीक है, and then data transfer rate, all these overhead, this access time का फॉर्मूला मैंने बताया था. So anyone having any confusion, so please let me know. Otherwise, I am just going to explain next topic of numericals based on this. Yes. किसी को कोई डाउट है इसमें? अतरूबा? अतरूबा No, खान? sir. Yes, sir. कोई डाउट देखो Like, अभी तक? Okay. So this is the problem that we were discussing in the last class. This is a disk with this specification. 16 surfaces are there and 128 surface tracks per surface and then 256 sectors per track and 512 bytes per sector. So what is the capacity of a disk space? So disk pack. So we just multiplied how many surfaces are there. Then in surface how many sectors, tracks, in tracks how many sectors, and in sectors how many bytes. 16 into 128 into 6 into 512. It will give us disk pack capacity. Okay. So disk pack capacity is this. Then number of bits required to address sector. So how many sectors are there? Surface into number of tracks, number of sectors. 19 to the power 19. That is 19 bits are there. Then फॉर्मेटेड डिस्क स्पेस क्या होगा? तो फॉर्मेटेड डिस्क फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्क स्पेस माइनस फॉर्मेटिंग ओवरहेड. तो फॉर दैट वी नीड, लेट मी यूज नोटेशन, फॉर दैट वी नीड फॉर्मेटिंग ओवरहेड, ठीक है. And total disk space I have already calculated in question 1, in part 1 of the question 1. Okay. So we know that total disk space, but what is the value of formatting overhead? This can be computed by total number of sectors into overhead per sector. ठीक है, मैंने ऊपर लिखा था फॉर्मूला. टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं? 219 and overhead per sector is given 32 bytes. So to the power 19 to the power 5, that is to the power 24, that is 16 MB. And now we know the value of formatting overhead and total disk space. So subtract this formatting overhead value from the total disk space. We have 240 MB of formatted disk. Is it clear? Yes. yes, sir. Okay. Next one. Formatting overhead, amount of memory lost due to formatting. क्या होगा? Formatting overhead, total number of sectors into overhead per sector. तो वही आ गया आपको to the power 19 into 64 bytes, that is to the power 19 6 25, that's okay. ठीक है, ऊपर निकाल था हमने. आप
ठीक है, 2 की पावर 19 into 6 to the power 2 की पावर 664 बाइट्स ओवरहेड पर सेकंड। ओवरहेड पर सेकंड 32 बाइट्स, 32 बाइट्स मींस 2 की पावर 5 बाइट, सॉरी दिस इन बाइट, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 19 एंड 2 की पावर 64, 64 बाइट्स, ये 64 बाइट्स, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ 32 बाइट्स है, यहाँ पे 64 बाइट्स, दैट इज 32 एम। नाउ मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक, लास्ट फॉर्मूले पे आइएगा पहले, मैक्सिमम रिकॉर्ड ऑल दिस ड्राइंग फर्स्ट। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग डेंसिटी क्या होगा, रिकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक, दिस इज डिफाइंड बाय कैपेसिटी ऑफ ट्रैक डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक। So what is the capacity of track, ये पहले पता करना है। So capacity of track के लिए क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रैक क्या होगा, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, ये तो होगा। ट्रैक की कैपेसिटी ऑफ ट्रैक को किस में डिवाइड किया गया है, आपके नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं एक ट्रैक के अंदर एंड नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, ओके। सो 256 into 5 2 bytes, that is 2 to the power 8, 2 to the power 9, that is 2 to the power 17, that is 1.8. This was storage capacity of a track. And circumference कैसे निकालेंगे, 2 pi radius ये तो होता है, and diameter is given 21 centimeter and pi value is 6, which is known to everyone, 3.14. This is the diameter, sorry, circumference of innermost track. Now divide this value, these two value, we get maximum recording density. Clear? ये क्लियर है? यस बेटे? Yes, sir. ओके, देन कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैक, तो क्या होगा, स्टोरेज डेंसिटी ऑफ इनर मोस्ट ट्रैक इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक। स्टोरेज सर्कमफ्रेंस हम निकाल चुके हैं वहां पर, एंड देन स्टोरेज डेंसिटी क्या होगी इसकी, तो स्टोरेज डेंसिटी हमने ऊपर निकाली 2 kb एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक 2 pi r, तो उसकी वैल्यू आई अप्रोक्सीमेट 130, ये क्या है हमारा 130 kb इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक। ठीक है, क्लियर है बेटे? देन डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज 3600 डिवाइड बाय 60 रोटेशन। ठीक है, तो 1 सेकेंड में वो कितने रोटेशन कर लेगा। नाउ डेटा ट्रांसफर रेट कितना होगा, नंबर ऑफ हिट्स इनटू कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक इनटू नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। सो 16 इनटू कैपेसिटी ऑफ वन, बिकॉज मैंने क्या बताया, जितने सरफेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ हेड होंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है, जितने आपके वो होंगे, सॉरी, जितने आपके सरफेस होंगे उतने क्या होंगे, हेड होंगे। फॉर एवरी surface we have read right head, 16 into 56 and 5.2 bytes is the capacity of one track, and then number of rotation निकाला हमने कितना, 60 से डिवाइड कर दिया हम 3600। ठीक है, क्लियर है? क्यों, क्योंकि देखिए रोटेशन करेंगे तो कितना एंगल हो जाएगा बताइए, ये कितना 180 होगा, 360. कितना होगा 360, एंड देन नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, 360 रोटेशन आपका एंगल हो गया, एंड देन 60 रोटेशन, 60 तो हमारा क्या है सेकेंड, वन रोटेशन में 3600, ये वैल्यू कैसे आ रही है 3600, is it given in question? Yes, Yes, sir. नंबर Yes. ऑफ रोटेशन 1 सेकेंड, ये गिवन क्वेश्चन में ना, Yes, sir. याद है क्वेश्चन? हाँ, तो इससे हमने फिर 6 डिवाइड Yes. कर दिया, दैट इज रोटेशन। सो दिस इज, देन एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा, टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन, तो 60 अपॉन 3000 दैट इज 20 मिलीसेकंड,
एंड एवरेज रोटेशनल डिले क्या होगा 1/2 टाइम टेकन फॉर होल फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका एंड देन एवरेज एक्सेस टाइम सीक टाइम रोटेशनल डिले एंड अदर फैक्टर 0 है एंड सीक टाइम हमारा 11.15 सेकंड आया था एंड एवरेज रोटेशनल डिले कितनी आई है 21.5 मिली सेकंड कितने मिली सेकंड लगेगा आपको एक डेटा रीड करने में ठीक है क्लियर Yes. Yes, sir. This is column 2. What is the average access time for transferring 512 bytes of data with the following specification? Average seek time is given. This rotation, RPM is rotation per minute. Data rate and controller overhead. Point 1. So average seek time 5 है. This तो time taken for one full rotation कितना होगा 60/6000. That is 1/100 second and 0.001 second. ठीक है. And then average rotational delay 1/2 into time taken for full rotation, that is 1/2 10 to 5 millisecond. And average कितना हो गया मैंने क्या पूछा था इसमें नंबर से what is the average access time for transferring 512 bytes of data with the following specification. अच्छा ये दिया हुआ मेरे सेम क्वेश्चन यहाँ तो ट्रांसफर टाइम सेम क्वेश्चन है ना ये 5 मिलीसेकेंड 6040.1 सेम क्वेश्चन सो यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्रांसफर टाइम 512 बाइट्स डिवाइड बाय 40 केबी दैट इज 12.5 मिलीसेकंड एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा फॉर्मूला था हमारा लगाते होंगे ठीक है यहाँ एवरेज सीक टाइम 5 मिलीसेकंड एवरेज रोटेशनल डिले 5 मिलीसेकंड ट्रांसफर टाइम निकाला हमने ऊपर 12.5 एंड कंट्रोलर ओवरहेड इज गिवन 0.1 मिलीसेकंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन अदर फैक्टर्स हमारे पास तीन के लिए क्या है 0 कॉलम 2 ही है ठीक है 3 नहीं है ठीक है इसको 2 ही कर दीजिए ओके क्लियर है Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क अबाउट मैग्नेटिक डिस्क डिस्क क्या होता है इस टर्मिनोलॉजी पर देख लीजिएगा जरूर याद कर लीजिएगा व्हाट इज सीक टाइम व्हाट इज रोटेशनल डिले व्हाट इज फुल स्ट्रोक व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ ट्रैक इस तरह की चीजें आपसे पूछ जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट magnetic disk. Now we will discuss disk scheduling algorithm. Okay, so let me just put that PPT. So PPT मैंने आप लोग शेयर कर दी थी ना यस The magnetic disc वाली Yes, sir. अच्छा अच्छा डिस्कस करते ये वाली नहीं ये इसको मैं आज करता सो टुडे नाउ वी विल डिस्कस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर दिस अच्छा ये हमारा लास्ट टॉपिक है अब मैंने इसके बाद जो भी दिया है वो आपका असाइनमेंट है होमवर्क है this is the last topic and after that whatever doubt whatever confusion you have in any unit in any topic just let me know मैंने कहा हुआ था कि आकिफ को और फरजान को अपने टॉपिक आप लोग व्हाट्सएप कर दें जब ये एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट रिवीजन है ना तो उस रिवीजन में जो जो टॉपिक आप बताएंगे उसको हम रिवाइज करें बिकॉज रिवीजन में इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस इन 1 वीक और 2 ठीक है तो क्लियर है ये यस बताए बेटे Yes, sir. So now this Yes, sir. question क्या है the algorithm used for disk scheduling are called disk scheduling algorithm the purpose of disk scheduling algorithm is to reduce the total seek time ठीक है कभी आपने देखा था इससे पहले सीक टाइम क्या होता है तो सीक टाइम जितना कम होगा आपके डेटा उतनी फास्ट रीड करेगा disk scheduling is done by OS to schedule input output request IO request means input output request arriving for the disk this scheduling is also known as input output schedule ठीक है it is done by OS ठीक है बहुत सारे IO रिक्वेस्ट आती हैं तो कौन से IO रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना है वेरियस टास्क डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर XCFS SSTF SSCAN ESCAN look
C loop algorithm. We will see each algorithm in detail in the coming slide. तो FCFS आपका उसमें भी था, इसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग में, है ना, सीपीयू शेड्यूलिंग के Yes. अंदर भी था, तो कंफ्यूज मत हो Yes. जाइएगा। एग्जाम में आया है कि FCFS एल्गोरिथम डिस्क शेड्यूलिंग है, मेंशन किया गया होगा आपको, ठीक है, तो Yes. so multiple IO requests may arrive by different process and only one IO request can be served at a time by the disk controller. ये देखा आपने पढ़ा होगा सीपीयू शेड्यूलिंग में, तो आपके सीपीयू के बहुत सारे स्टेट्स है ना प्रोसेस के, रेडी, रन, टर्मिनेट, ब्लॉक्ड, ठीक है, सस्पेंडेड। तो उसमें क्या था, कोई प्रोसेस रेडी क्यू या रनिंग स्टेट से ब्लॉक पिकअप आती थी जब उसको इट नीड सम इनपुट आउटपुट, है ना, ठीक है। तो Yes, sir. जिस वही इनपुट यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर से एक प्रोसेस है तो बहुत सारी इनपुट रिक्वेस्ट आ सकती हैं, किसी आपको प्रिंट होना है, कुछ कमांड देके प्रिंट कराना है, तो इसे कहेंगे इनपुट आउटपुट। So multiple IO requests may arise by different process and only one IO request can be served at a time by this controller. Thus other IO requests need to wait in the waiting queue and need to be scheduled. तो अब किस तरीके से इनकी IO शेड्यूलिंग की जाए ना, इनकी इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग की जाए, जिससे ये प्रोसेस आपस में इनका टाइम सीक टाइम कम से कम हो जाए। Two or more requests may be far from each other, so they can result in disk arm movement. Hard drives are one of the slowest part of the computer system and thus need to be accessed in an efficient manner. ठीक है? So FCFS first. So as the name indicates, it algorithm first serve the request in order of their arrival time. जैसे जैसे वो अराइव हो रही है वैसे वैसे उनको शेड्यूल करेंगे, क्यू मेंटेन किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्क क्यू. डिस्क क्यू कंटेन ऑल आईओ रिक्वेस्ट बाय बाय ऑल द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस दे रहे हैं, एंड देन उसकी टाइमिंग के साथ उसको सर्व करें. इट इज द सिंपलेस्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. एडवांटेज इसका पढ़ लीजिएगा, डिसएडवांटेज जो है. क्वेश्चन 1 जैसे देखिए, तो दिस इज अ क्वेश्चन. कंसीडर डिस्क क्यू with request for IO to blocks on cylinders 98, 183, 41, 122. This the FCFS scheduling algorithm is used. The head means read write head. Okay, the head is initially at cylinder number 53. The cylinders are numbered from 0 to 199. तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 199 तक सिलेंडर है. The total head movement in number of cylinder. तो आपका रीड राइट हेड का कितना मूवमेंट हुआ होगा वो आपको बताना है यूजिंग FCFS पॉलिसी. ओके, क्लियर है? क्वेश्चन इज क्लियर? No, We sir. will एक बार solve. sir और बताइए. Okay, we will solve this question for every scheduling algorithm. The numeric values are same, only policies are different. Okay, so जैसे ये कह रहे हैं, let me use the notation also. ये कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यूज है 0 से लेकर 199 गिवन, और ये सब क्या है, ये विथ रिक्वेस्ट फॉर दिस क्यू विथ रिक्वेस्ट फॉर आईओ टू ब्लॉक्स. तो ये ऑन सिलेंडर, तो ये सिलेंडर पे जो रिक्वेस्ट जा रही है, इसकी नंबरिंग की गई है. तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 14. इसके बाद क्या है बताइए, मान लीजिए 14 के बाद क्या है, 41. 41. 41 एंड So 60, 65, 67. 65, 67, 122. So sir 98. 98. 98, 122. 122. That's it. 183. So 183. 124. अच्छा 124. ये तो हुआ ना, ये Yes, sir. 188, ये 188, तो 183 है sir. 186. करेक्ट, क्लियर? अब देखिए, Yes. अब ये कह रहा है इनिशियली जो हमारा सिलेंडर है वो कहाँ पर है, 53 पे है. 53 कहाँ पे आएगा आपका, ये 41 है, ये 65 था, यहाँ मान लीजिए 53 है.
अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, पहले क्या आया, 98 आया है ना, 98 है। इस ऑर्डर में आपको सिलेंडर को एक्सेस करना चाहिए। 98 है, 183 है, 41 है। अब 50 इनिशियली रीडायरेक्टेड, पहले यहाँ पे मान लीजिए कुछ आप इनिशियली उसको कहीं ना कहीं उसको तो आपको लोकेट लोकेट करना पड़ेगा, चाहे 0 पे कर दें चाहे कहीं और कर दें। मान लेते हैं कि इंटरमीडिएट सिचुएशन में ये 58 53 पे था, 98 कहाँ पे था, 53 पे था, यस, ठीक है। तो अब 53 से इसको कहाँ मूव करना है, 98 पे मूव करना है। तो इट मूव फ्रॉम 53 टू 98, तो 98 कहाँ पर है, यहाँ पे 98। देन फ्रॉम 98 टू 183, now it will move from 98 to 183। now 183 to 41, 41 मीन्स अब इसको यहाँ से यहाँ आना, 41 to 122, 122 is here, 122 to 14, now 14 to 124, 124, 124 to 65, 65, 65, and then 67। तो ये हुआ हेड मूवमेंट, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एज पर द अराइवल, एज देयर अराइवल टाइम ये मूवमेंट हुआ। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि द सिलेंडर और नंबर फ्रॉम दिस इज द टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट। तो पहले कितना था, 53 था, 98 माइनस 53, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 183, तो 183 माइनस 98, नाउ फ्रॉम 183 मूव फ्रॉम 41, तो इट इज 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिएगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज नंबर में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 41 माइनस 93 वो माइनस जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। you have to take absolute value or you just subtract from higher value to lower value। now अब वहां 41 से कहाँ मूव किया है इसने, 122 पे मूव, 122 माइनस 41, now 122 से मूव किया है, इट इज 14, तो 122 माइनस 14, now from 14 it is moved to where, 124, 124 minus 14, and then from 124 to 41, 41 ना, तो 120 माइनस 41, ये तो है, नहीं नहीं 41 नहीं, कहाँ पे था, 65, 65. It's a 65. 65, and from 65 to 67, 67, this is the value of, अब मैं इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, ऐड करके ये वैल्यू कितनी हो रही है, इसको दिस वैल्यू सबको ऐड कीजिए, ये क्या हमारा हेड मूवमेंट हुआ, इतना उसने हेड मूवमेंट किया होगा एज पर द एफसीएफएस पॉलिसी। देखिए बताइए कितना आया, The 632. so this is the value, this is the answer। now read the question again na, this queue which request IU to block on cylinder 98, this is our IU request 98, 183, 41 and 67 as per their arrival time, and then SCFS scheduling algorithm is used, is given in the question, SCFS disk scheduling, okay, and disk कर ली। अब ऐसे आईओ यूज हुआ है, जाहिर सी बात है वो डिस्क शेड्यूलिंग नहीं है, बट ठीक है। द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर 53, द सिलेंडर आर नंबर्ड फ्रॉम, अब देखिए एफसीएफएस यूज होगा अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो डिस्क शेड्यूलिंग होगा। अगर मान लीजिए जॉब होता तो क्या होता है, वहाँ अराइवल टाइम गिवन होता एंड बस टाइम गिवन है नहीं, तो आप अपने कॉमन सेंस से यूज कर सकते हैं कि एफसीएफएस किसके लिए यूज हो रहा है, डिस्क के लिए यूज हो रहा है या सीपीयू के लिए, ठीक, क्लियर है। ये इतने मूवमेंट हो गए, तो ये मैंने शायद किया भी होगा,
ठीक है, क्लियर? तो टोटल Yes, sir. 632 आया। एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, है ना, है तो इजी, बट ये हमारा SCFS है। नाउ नेक्स्ट वन इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा, दिस algorithm services that request next which requires least number of head movement from its current position regardless of the direction. So डायरेक्शन ऐसा नहीं कि पहले वो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ लास्ट लाइन, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। एंड क्या कह रहा है ये, विच रिक्वायर्स लीस्ट नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, लीस्ट नंबर ऑफ हेड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर से वो पहले कहाँ था, 53 पे था ना, और इसके बाद क्या यहाँ 60 गिवन है और यहाँ गिवन है मान लेते हैं 40। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से कहाँ जाएगा बताइए, इधर है, इधर किस साइड जाएगा? सर 60 की हो। माइनस 53 कितनी वैल्यू होगी, दैट इज 7। और यहाँ कितनी हो जाएगी, 13। तो कौन कम है, 7 कम है, दैट्स व्हाई इट्स मूव टू 60। ओके, क्लियर? यस यस, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो नाउ सेम प्रॉब्लम देखिए, इट टेक्स द टाई इन द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट। तो अगर तुम्हारा टाई हो जाता है तो क्या होगा, जिधर मूव कर रहा था उधर ही मूव कर जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बेटे, नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए जैसे टाई का मतलब मैंने बना दिया यहाँ पर, अब यहाँ से मूव करने में यहाँ भी आ रही वैल्यू 12 और यहाँ से मूव करने पे यहाँ वैल्यू 12 आ रही। अब कहाँ मूव करेगा, इधर या इधर? तो दोनों वैल्यू सेम है। तो अब पहले मान लेते वो यहाँ पे था, पहले वो यहाँ से यहाँ मूव किया, तो अब इधर ही मूव कर जाएगा। ठीक है, यस मतलब जिधर वो पहले इससे पहले मूव किया था जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा इन केस ऑफ टाइम। क्लियर? यस तो इसको आप याद करिए तो समझ लीजिए। एडवांटेज है, इट रिड्यूस टोटल सीक टाइम एज कंपेयर टू, अभी देखेंगे एग्जांपल से, इंक्रीज थ्रूपुट। डिसएडवांटेज भी इसका गिवन द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 53 से कहाँ जाएगा पहले, यस बताइए? सर 41 अब देखिए मैंने यहाँ पे, अब मैं ड्रॉ करना बड़ा टफ हो जाएगा, माउस मेरा पिछला वाला माउस जो है हमारा खराब हो गया, वो ड्रॉ करते टच स्क्रीन है नहीं, और माउस से ही करना होता है। तो देखिए यहाँ 53 से कहाँ गया पहले, बताइए? 65 65। ठीक है, क्यों? बिकॉज 41 आप माइनस कीजिएगा और ये तो ये कम होगा। नाउ फ्रॉम 65 टू 67, हर बात दो ही डिफरेंस यहीं आ जाएगा। एंड 61 7 टू, तो 53 में 41 भी 12 आएगा और 65 माइनस 53 भी 12 आएगा सर। नहीं 53 से यहाँ पे है ना ये, यस जहाँ कितनी वैल्यू है बताइए माइनस करने पे? सर 12 So 12, और यहाँ पर 12 2 12 आएगी। उसके बाद 12 तो आएगी। yes sir, first पे 12। हाँ, अब 12 आई। सो अब यहाँ पर कौन सा मूवमेंट होगा ये आपको देखना है। एक अब नाउ इन दिस केस बिकॉज वी आर एट इनिशियल पोजीशन, है ना, तो अब देखिए 41 और 65 में पहले कौन आया है, 41 तो पहले आया है बट 65 की तरफ पहले जा रहा है ना। तो इसका 14 मतलब भी ये है, सर। हाँ हाँ, नहीं 14 नहीं, अभी तो हमें टाइप 12 में, इसमें 41 में और उसमें मिल रहा है ना, ये सर टाइप दोनों में किससे से मिल रहा सेम है? मिला लेकिन
यस सर, 41 और लेकिन 65 सर अगर लेंगे। 65 लेंगे तो सर उसी डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड कर जाएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे यहाँ 12 आया है और यहाँ भी 12 आया है, तो अब नाउ यस अगर सर। से पहले कौन आया, पहले तो ये आया हुआ है, ठीक है। यस सर। बट मूवमेंट कहाँ होगा, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा लार्जर वैल्यू तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू लार्जर होगी वही वही मूव कर जाएगा। तो 56 ओके तरफ सर। कहाँ पे आ जाएगा, 65 में आ जाएगा। नाउ 65 से 67, अब 67 से 98 में कीजिए, 67 से 41 देखिए कौन कम हो रहा है, बताइए। सर 65 67 to से 9, 67 कम है। ये नहीं, 67 और 67 से 41। सर ये हो जाएगा 31 सर, और ये हो जाएगा सर 31 सर, ये हो जाएगा 26 पे है ना। चला जाएगा क्योंकि वो वैल्यू कम है। हाँ कम, यस। तो नाउ अब इसको देखिए, अब ऐसे ऐसे ही बना हुआ था, यस ठीक है। तो इसमें ये एडवांटेज इसका होगा क्या, इसमें कम टाइम आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। यस सर। सीक टाइम देखना है ये ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अराइवल, ये कंसीडर ओनली सीक टाइम। तो इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक मेंटेन सीक टाइम, है ना। उसको आपको पहले आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर मूव करना पड़ेगा, नहीं। ये एक्स्ट्रा 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 काम हो गया ना हमारे लिए। अगर से आप इसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट वैल्यू, ये तो करेंगे। यस यस तो सर। पहले आप इसको सॉर्ट सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट करने के बाद देखेंगे इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, फिर उसके बाद आप लेफ्ट 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 राइट चेक करेंगे, फिर मूव करेगा, फिर उसको चेक। तो थोड़ा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। एक्सीएस यस क्या सर। था, बहुत ईजी। तो ये है कि बट इसका एडवांटेज भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, फिर इसी पे है। अब देखिए यहाँ पे है, the consider cylinder with 100 cylinder, the request to access the cylinder are following 4 3 10 this. Assume that the head is contained in cylinder 50. What is the time taken to satisfy all the requests? If it takes 1 millisecond to move from one cylinder to adjacent one and shortest seek time policy is used. तो यहाँ भी सेम चीज है। तो पहले तो निकालेंगे हाउ मेनी मूवमेंट्स आर देयर। तो जैसे अभी ऊपर निकाला था आपने, वैसे ये भी आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 millisecond to move from one cylinder to another. So how many movements are there? 119. Now multiply 119 by 1, that is 119. Okay, यस clear? तो अगर ये होता 2, कितना हो जाता? क्लियर बेटे? यस सर। एक मिनट सर। हाँ चेक कर लें, अगर से हो तो कुछ इधर तो बताओ, कुछ परेशानी हो, कोई डाउट हो। यस सर, क्लियर है। ओके, now let's go to the next point. Now क्वेश्चन ऑन एफसीएफएस, तो ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है, ठीक है। 199, अच्छा सेम प्रॉब्लम एफसीएफएस करके देख लीजिएगा। नाउ स्कैन डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्गोरिथम। So scan algorithm is also called elevator algorithm. This is because its working resembles the working of an elevator. कैसे? Algorithm scans all the cylinder of the disk back and forth. है ना? मतलब जैसे होता है पेंडुलम होता है, लेफ्ट राइट जो भी हो। Head starts from one end of the disk and move towards the other end, servicing all the request in between. इसका मतलब ये है कि अगर से मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय है और उसको क्या करते हैं कि आई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से स्टार्ट करनी है अपनी डिलीवरी, है ना। और दुबग्गा के लिए भी सर्विस आई है और भिटौली के लिए भी सर्विस आई। तो वो क्या करेगा, अगर से उसने चूज किया है दुबग्गा की तरफ जाना, तो अब अगर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आईआईएम पे भी सर्विस है, भिटौली के रास्ते में पड़ेगी, पड़ेगी ना। अब यस तक सर। क्लियर है ना आप लोगों को। बट यस अब दुबग्गा में भी सर्विस है, तो अब ये क्या करेगा कि दुबग्गा की तरफ अगर से सर्विस देना शुरू किया, तो अब वो उधर वहां तक जाएगा दुबग्गा तक, ठीक है। वहां तक जितनी भी सर्विस होगी उसको सर्व करता हुआ चला जाएगा, इरिस्पेक्टिव कि उसके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जस्ट बगल में ही कोई सर्विस क्यों ना हो, लेफ्ट साइड, ठीक है। आई समझ बात। अब उसके बाद फिर यस वो वापस आएगा, वापस आएगा, फिर भिटौली जाएगा, दुबग्गा से कहाँ जाएगा, भिटौली। फिर जितनी सर्विस आएगी तब करता जाएगा। तो इसमें बस फायदा भी है, नुकसान भी इसके हैं, ठीक।
इसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी। मान लीजिए कि अब आईएम को अगर से सर्विस पहले कर देता तो उसके टाइम बच कम हो जाता, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता, कम हो जाता। बट अभी क्या है, उसको वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से दुबग्गा जाएगा, वहां से फिर वापस आएगा, तो आईएम वाले को ज्यादा वेट करना पड़ता है ना। क्लियर है, ये इसके मतलब है। हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड, सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। आफ्टर रीचिंग अदर एंड, head reverse its direction and moves towards the starting and servicing all the requests. The same process repeat करता रहेगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल है, डज नॉट लीड टू स्टारवेशन, इट प्रोवाइड्स लो वेरिएंस इन रिस्पांस टाइम एंड वेटिंग टाइम। डिसएडवांटेज क्या है, इट्स लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर जस्ट वेटेड बाय द हेड। तो जैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन इज सेम, यस सर। ओनली पॉलिसी इज डिफरेंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मूव किया उसने। अब उसने पहले मूव शुरू किया 53 से, कहाँ, और हमेशा यहाँ मान लेते कहाँ जाएगा, एज्यूम दैट इट मूव्स टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। मान लिया ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये लार्जर, तो 53 से कहाँ जाएगा, 54 55 ऐसे ही जाएगा। तो अब देखिए ये कहाँ, ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अराइवल टाइम, इसने क्या किया, इसने बस यहाँ से चलना शुरू किया, आंख बंद करके बस चलता चला गया, कहाँ पर, एक एंड तक आया। हाँ, भले इसकी रिक्वेस्ट आई नहीं थी, नहीं आई थी ना, यस क्यों, सर, रिक्वेस्ट नहीं है सर। बट ये यहाँ तक एंड तक आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है ना, 0 से कहाँ तक दिया है हमको, 199 तक गिवन है, ये एंड यस तक आएगा ये है। तो ये बिल्कुल यहाँ से शुरू किया इसने, दुबग्गा तक चलता चला है। मान लीजिए दुबग्गा है हमारा, ये भिटौली है, और ये हमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यहाँ से शुरू किया इसने। तो वैसे चलता चला, एक तरफ गया, जितनी भी रिक्वेस्ट आई थी सबको सेटिस्फाई करता चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर रिवर्स के डायरेक्शन, तो सर ठीक है। यहाँ पर भी सर इसे 0 तक जाना चाहिए सर। हाँ, किसमें, सर अगर इसमें सर ये 83 तक रिक्वेस्ट थी पर इधर ये 199 तक गया, तो सर इधर भी सर इसे जाना चाहिए 0 तक। हाँ, यस यू आर राइट, इसको यहाँ भी आना चाहिए था, एज पर द पॉलिसी इसको यहाँ तक आना चाहिए था, फिर यहाँ से मूव करता, फिर यहाँ तक यस जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा। यस यू आर राइट, इसको ऐसे ही कीजिए, ठीक है, यस सर। ठीक। अब जो वैल्यू आएगी उससे निकाल लीजिए, तो इसको इससे माइनस कर दिया। अब इसको भी सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ से माइनस कीजिए इसको, सिंपल, क्यों, ये तो होगा, तो 199 माइनस 53 365 वैल्यू वही आएगी, प्लस फिर 0 199 माइनस 0, ठीक है, इसकी वैल्यू है ये। अभी यहाँ कितना है, 330। इससे पहले कितना आया था, सीक टाइम में कितना आया था, सर 119 सर इसमें। 236 आया था, यस SSTF, ठीक है। सेम प्रॉब्लम देखिए, 236, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फिर मुझे बताइए, ठीक है। ठीक, नाउ सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब इसको हम जो है